Hello, good morning. Today I will be taking class on human digestive system. So let's see how it is going means what is the human digestive system. First of all, the human digestive system in that what it comes first, its first thing is about conversion of macromolecules into micro molecules. It's a conversion of a macromolecule into macromolecule. The human digestive system consists of alimentary canal and a digestive gland. You can see one whole tube pipe would be there, which would be proceeding from mouth to a last organ, that is anus. So in that, right from mouth, it gets converted into into this bolus to chyme, and chyme to alimentary canal. Now and then it gets out of the body in the form of a faeces. Now alimentary canal is what is a long muscular tube that is situated in our body, muscular, and it is having a glandular epithelial lining. You would have studied in tissues chapter. Glandular epithelial lining, and it will vary in a diameter. How it will vary? In esophagus is little bit narrow, but the stomach is little bit enlarged in diameter also. But if we go to the intestine, then it is thin, little bit thin, not too much thin, but in compared to large intestine, it is little bit thin. It opens out at the upper and lower end of the lower end, and the most it lies in the abdomen in a much coiled form. है ना, कॉइल्ड फॉर्म में होता है ये पूरा. हिस्टोलॉजी मतलब क्या? हिस्टोलॉजी मीन्स द इफ यू कट इट इनटू ट्रांसवर्स सेक्शन, if you cut, like if this is the intestine, if you cut it in this way, it's a TS section we call it. So TS and LS is there, longitudinal. If you cut from here like this, that is a longitudinal section. Thin slices are there. So when we keep this thin slices under the microscope, then we study about the tissues. So in the alimentary canal, if we take from anywhere, if we take TS section or LS section, then what we are going to see? We are going to see the walls of the alimentary canal consist of 4 concentric coats. That is from beginning, means from outside, you have a visceral peritoneum or a serosa muscular coat. You have a submucosa and a mucosa or a mucous membrane. Just we will study now later on. That's why I'm not going proceeding that much ahead. Now you can see over here visceral peritoneum. Visceral peritoneum is a simple squamous epithelium which is attached to the underlying muscular coat by a thin sheet of a loose connective tissue. It is continuous and a mesentery that suspends the gut from the dorsal body wall. You can see over here a thin sheet like papery like structure is there, that is called the mesentery, and the outer outer covering is with the thin plastic like coating is there. It's not plastic like, but just if you see, it will look like a transparent, semi-transparent like that, and that is called the visceral peritoneum. It normally protects your our organ. Now muscular coat. If we proceed ahead towards the inner side, you can see over here there is a serosa outside, and then muscular layers are there, longitudinal in circular muscle and outer longitudinal muscle. Circular muscle means it will be in this way, like this, circular, in this way it would be arranged. So that's why when you see it will they have shown it like this, but longitudinal muscle would be like this, standing like this. So if you cut it, it will be like circular shape. So it will be going like this, and while this is like this, in this way and in this way. So now now over here, the muscular coat, which is there, it is composed of a unstripped muscle fiber arranged into 2 layers. Now which are they? They are the outer of a longitudinal muscle fiber
and the inner one is a circular muscle fiber. Now between these two layers is a connective network of the nerve cells, and a parasympathetic nerve fibers are named with the plexus of Auerbach or a myoenteric plexus. It controls the muscular contraction. Muscular contraction means you can say like this, है ना. तो इसके अंदर जो है दो लेयर्स के बीच में नर्व्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं. किसके बीच में? नेटवर्क ऑफ नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है. दो लेयर्स के, दो मसल लेयर्स के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में, और जिसको हम कहते हैं प्लेक्सस या ऑफ ऑर्बैक या मायोएंटेरिक प्लेक्सस. और ये कंट्रोल करता है क्या? ये कंट्रोल करता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. When you're hungry, contraction goes on, you know that. So hunger pang, that is called the hunger pang. Now you can see over here, as nerve arteries are going towards inside between the this one circular muscle and longitudinal muscle, which is called as a enteric nerve. In enteric nerve, and enteric nerves are there which gives you which contracts your stomach, intestine, है ना. And glands of mucosas are also there. You can see over here duct of glands are outside of means over here you can see that the duct of a pancreas is there, है ना. तो from here the secretion, whatever the pancreatic juice would be there, it would be passed into the duodenum from this duct only. Okay. So, and if it is epithelium, then obviously over here some mucosa associated lymphoid tissues would be there. Malt, lumen. I think this TS is of that duodenum. Now we will proceed ahead. Submucosa. Submucosa is what? It consists of a highly vascular, dense connective tissue. The intestinal glands sink into the submucosa. We already know about this thing, है ना. We will talk on this one. इटका ये जो है सब म्यूकोसा बहुत ही हाईली वैस्कुलर है. यहाँ पे बहुत सारे आपको आर्टरीज और ये सब मिल जाएंगे, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ मिल जाएंगी. ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है ये सींक करेगा, यानी अंदर की साइड पे जाएगा सब म्यूकोसा के अंदर. और यहाँ पे अनदर नेटवर्क जो है, इसके अंदर नर्व सेल्स और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेक्सस ऑफ मैसर या सब म्यूकोसल प्लेक्सस, ये लाई करती है बिटवीन मस्कुलर कोट और सब म्यूकोसा के बीच में. और ये जो है यहाँ से क्या होगा? इट कंट्रोल्स द सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस. सो ओवर हियर द इंटेस्टाइनल जूसेस वुड बी secreted. Mucosa has a 3 parts. Okay, now mucosa has a 3 parts. Which are these 3 parts? One is the outer thin muscular submucosa, or a outer longitudinal and inner circular muscle fiber. Both are unstriped. Over here, middle lamina propria or a vascular reticular connective tissues connect the lymphatic nodes. See, everywhere lymph nodes are always there, because in the lymph nodes WBCs are there. Now in WBCs, in this one especially neutrophil and eosinophil, so if any infection is there, if any bacteria is there in your body, in your food, then they are ready to fight with that, with any of the if they are not able to fight, then obviously they are going to enter in your blood vessels and swelling and everything will occur, है ना. So lymph nodes are there over here. Inner simple columnar epitheliums are also formed. Gastric glands, because they are going to release hormones, juices, है ना. Gastric juices in the stomach, and in intestinal gland is there in intestine. We know intestinal secretions are also there. Now lamina propria extends into the epithelium, continues over the folds and villi on the wall. Lamina propria is going to extend कहाँ पे? lamina propria ये सब extend होगा villi walls में, है ना. folds में, folds कहाँ पे आएंगे? एक तो रोगो में आएगा और एक villi में, villi इसमें आएगा, किसमें?
स्मॉल इंटेस्टाइन में। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स जो हैं वो सेवरल ऑर्गन्स, एक है माउथ, वेस्टिब्यूल, ओरल और बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो माउथ क्या है? माउथ एक्चुअली ट्रांसवर्स स्लिट, ट्रांसवर्स यानी इस टाइप का, ऐसे ऐसे कट किया हुआ एज अ ट्रांसवर्स स्लिट। अब ये बाउंड करता है टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स, अपर एंड लोअर। अभी जो लिप है ये कवर्ड होती है विद द स्किन आउटर साइड से, और इनर साइड से म्यूकस मेम्ब्रेन है। ऑन द इनर साइड देखो, ऊपर की साइड पे स्किन नॉर्मल है, लेकिन अंदर की साइड पे देखो तो बहुत सारे उसमें ग्लैंड्स हैं, है ना, म्यूकस है, चिक्कास टाइप का है अंदर की साइड पे। माउथ जो है वो लीड करती है किसमें? वेस्टिब्यूल के अंदर। अब वेस्टिब्यूल क्या है? ये एक नैरो स्पेस है जो कि एनक्लोज करता है लिप्स और चिक्स के बीच में एक्सटर्नली, और गम्स और टिथ इंटरनली। अगर हम बाहर से देखें तो चिक्स आएगा वेस्टिब्यूल में, लिप्स और चिक्स एक्सटर्नली बाहर से, और अंदर से गम्स और टिथ। अब ये जो इसकी जो लाइनिंग है ये कंटेन क्या करेगी? म्यूकस ग्लैंड। वेस्टिब्यूल जो है वो स्मॉल मीडियन फोल्ड्स हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, सुपीरियर लेबियल फेनेरलम, और ये कनेक्ट करेगा मिडल ऑफ द अपर लिप टू द गम्स, एंड यूजुअली द सिमिलर बट स्मॉलर inferior labial frenulum connects the middle of the lower lip at the gum। अब ये जो इसमें ये क्या रहा है, ये जो लाइनिंग है इसमें ये कंटेंट करती हैं म्यूकस वेस्टिब्यूल के अंदर, जो कि स्मॉल और मीडियम फोल्ड्स हैं। हल्के हल्के देखो तो आपके लिप्स पे फोल्ड्स हैं, है ना, तो जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, और सुपीरियर लेबियल जिसको लेबियल फेनुलम है जो कि कनेक्ट करता है मिडल ऑफ द अपर लिप, मिडल जो अपर लिप का है उसको गम के साथ, है ना। जब आप उसको लिप्स को जब आप ऊपर करोगे तो बीच में एक लाइन जैसा आएगा, वो ये बता रहे हैं। और ये जो है सिमिलर है, और स्मॉलर लेबियल लिप जो है वो कनेक्ट करता है मिडल ऑफ द लोअर लिप से बाय गम्स, है ना। नीचे अगर आप जीभ अगर आप नीचे की साइड पे टच करोगे लिप के नीचे अंदर की साइड पे, तो वो गम के साथ अटैच्ड है ना। ये जो वेस्टिब्यूल है ये लीड क्या करती है? इनटू ओरल कैविटी। इसके बाद हमारी ओरल कैविटी आती है। तो ओरल कैविटी में पैलेट्स हैं, टंग है और टिथ है, जिसको ओरल कैविटी को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। अब ये जो ओरल कैविटी है ये जो है बहुत ही इट इज़ अ लार्ज स्पेस, ये बहुत एक लार्ज स्पेस है जो कि बाउंड करता है अबव द बाय द पैलेट, बिलो जो है थ्रोट, और साइड में जॉज। ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता ही है। फिर जो थ्रोट है ये सपोर्ट करता है टंग को, जो हमारा टंग है वो थ्रोट से होके आता है ना, वहाँ से सपोर्टेड है। और जो जॉ है ये बियर करता है टिथ। ये जो बकल कैविटी है ये लाइंड अप है बाय स्ट्राइटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। जो बकल कैविटी है उसमें क्या है? स्ट्राइटेड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं। अब प्लेट, ये जो प्लेट है ये एंटीरियर पार्ट जो है पैलेट के, सॉरी वही मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। इन एंटीरियर पार्ट जो है पैलेट के वो आर्च्ड एंड स्ट्रॉन्ग है। आर्च यानी थोड़ा ऐसे घुमा हुआ इस तरीके का। तो जो एंटीरियर पार्ट है, जो आगे का पार्ट है पैलेट का, वो आर्च्ड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इसको हम कहेंगे हार्ड पैलेट। और ये जो है ये सपोर्ट किससे होता है? बोन से। और ये ट्रांसवर्स रिज है ऊपर, जिसको हम कहेंगे पैलेट रोगे, है ना। अगर आप जीभ को अगर आप टच करोगे ऊपर की साइड पे, जो ऊपर की साइड पे पैलेट पे, तो आपको रफनेस दिखेगा उसमें, है ना। तो उसको हम कहेंगे पैलेट रोगे। और ये जो रोगे है ये हेल्प करता है जब हम खाना का चबाते हैं तो उसको उसकी जगह पे रखने के लिए। फिर जो पोस्टीरियर पार्ट है पैलेट का वो जो है स्मूथ है और फ्लैशी है पीछे की साइड का, और ये कंटेन करता है सॉफ्ट पैलेट। और इसका जो स्मूथ सरफेस है वो स्वॉलिंग के लिए बहुत इजी है, निगलने के लिए बहुत आसान रहता है। जो मिडल है, मिडल ऑफ द हिंज जो है
हिंट वो फ्री है। किसका? मिडल पोर्शन जो है वो फ्री है सॉफ्ट पैलेट का। लेकिन पैलेट पे हैंग डाउन करता है एक कॉनिकल फ्लैप, जिसको हम कहते हैं उल्वा। अभी एक डायग्राम आएगा, उसमें आपको दिख जाएगा। अगर आप मिरर में भी देखो तो जो आप मुंह खोलते हो मिरर में, तो आपको पीछे एक कॉनिकल टाइप का आपको खुला ऐसे दिखेगा लटकता हुआ, वो उसको हम कहेंगे उल्वा। बाद में ये जो मूवेबल और कैपेबल है कमिंग इन द कांटेक्ट विद द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, पीछे की साइड पे फेरेंजियल वॉल के साइड पे है, और ये जो है ये कट करेगा अपर नासल चैम्बर को फेरिंग्स के साथ, और जिसको हम कहेंगे नासोफेरिंग्स, है ना। नाक और फेरिंग्स के साइड पे जो कनेक्शन है उसको हम नासोफेरिंग्स कहेंगे, नाक और फेरिंग्स के साइड का। फ्रॉम द लोअर ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स टर्म्ड एज द ओरोफेरिंग्स ड्यूरिंग स्वॉलिंग, जब हम निगलते हैं खाना, जब हम आगे जब बढ़ता है खाना तो उसमें ये पोर्शन है, ठीक है। अब टंग जो है वो एक लार्ज मस्कुलर हाईली मोबाइल ऑर्गन है, और ये मेनली जो है ओरल कैविटी में है और पार्टली ये फेरिंग्स में है। अब इसका जो बेस है वो फिक्स है, एक बेस जो है वो फिक्स है, एक साइड अपेक्स फ्री है और पीछे का साइड फिक्स है, जिसको हम प्रोट्रूसिबल भी कहते हैं। अटैचमेंट, अब टंग का जो अटैचमेंट है मिडल ऑफ जो अंडर सरफेस है टंग का, वो अटैच है किसको? फ्लोर को, ओरल कैविटी का, जिसमें मीडियन फोल्ड है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, और इसको हम कहते हैं फेरेनलम लिंगुआई और फेरेनलम ऑफ द टंग। फ्यूरोज हैं जीभ में, अगर आप जीभ को देखो तो एक बीच में एक वी शेप बनता है, तो ये जो इन्वर्टेड वी शेप है फ्यूरो जो है, मतलब एक खड्डा जैसा बीच में से, अगर आप जीभ को देखो तो बीच में से एक खड्डा जैसा है, तो वो जो खड्डा फ्यूरो है उसको हम कहते हैं सैकुलस टर्मिनालिस, और ये एक्सटेंड करता है टंग में बिटवीन फेरेंजियल कैविटी टू ओरल पार्ट, फेरेंजियल पार्ट से ओरल पार्ट तक ये फ्यूरो आपको दिखेगा। एट द एंगल ऑफ द फ्यूरो इज़ अ स्मॉल पिट, एक छोटे छोटे उसमें खड्डे हैं, जिसको हम टर्म करते हैं एज अ फोरामेन सिकम, है ना। अब ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट जहाँ पे थायराइड ग्लैंड ओरिजिनेट होता है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड ओरिजिनेट होता है, और ये जो अंडर सरफेस है इसके ओरल कैविटी का टंग का, उसमें जो है एक स्लाइट मीडियन ग्रूव है, एक लाइनिंग जैसा है। पेपिलाई, अंडर सरफेस ऑफ अ टंग बियर्स पेपिलाई दैट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स हैं, और ये जो ये पेपिलाइज हैं ये 3 टाइप के हैं, वालेट, फुजीफॉर्म और फिलीफॉर्म। वालेट पेपिलाई जो है, ये पेपिलाई जो है बहुत ही लार्ज होते हैं, साइज़ में वेरी करते हैं, 8 to 10 जो है नंबर्स हैं इनका, और ये लाई करते हैं वालेट पेपिलाई सर्कुलर ग्रूव में, और इसका जो वॉल है ऑफ द ग्रूव वो कंटेन करता है टेस्ट बर्ड्स। फुजीफॉर्म पेपिलाई, ये भी जो है पेपिलाई जो है वो राउंड होते हैं, डीप रेड कलर के होते हैं, और ये जो है बहुत ही सारे होते हैं, और ये छोटे होते हैं वालेट पेपिलाई के मुकाबले। और एपिथेलियम जो है इसका वो फुजीफॉर्म पेपिलाई इसका टेस्ट फुजीफॉर्म पेपिलाई टेस्ट बर्ड्स कहलाएगा, है ना। एपिथेलियम जो है उसमें बहुत सारे होते हैं फुजीफॉर्म में, जिसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और फिलीफॉर्म, फुजीफॉर्म हो गया, फिलीफॉर्म पेपिलाई जो है ये स्मॉल साइज़ में होते हैं, बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, और ये 3 मेन पार्ट्स में हैं, कॉनिकल, केराटिनाइज्ड और वाइटिश। फॉलिएट पेपिलाई जो है ये 4 से 5 ट्रांसवर्स फोल्ड्स हैं इसमें, बॉर्डर की साइड पे टंग के, जो कि बेस के पास में है, और ये जो है प्रोजेक्शन इसके फॉलिएट पेपिलाई के हैं, मतलब थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ है, प्रोजेक्शन है उस पर, आपको दिखेगा अगर आप उसको ध्यान से देखो तो। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगी, उसमें आपको क्लियर दिख जाएगा। लिंगुअल टॉन्सिल जो फेरेंजियल पार्ट है टंग का, ये लेक करता है किससे? पेपिलाई से, लेकिन ये शो करता है नंबर ऑफ लो एलिवेशंस,
बहुत सारे उसमें एलिवेशंस हैं। अब इसमें जो है एलिवेशंस है जिसमें नोड्यूल जो हैं लिम्फोइड की टिश्यूज़ के, ये एम्बेडेड है इसके अंदर। अगर आप साइड में जब आप उसमें देखोगे पिक तो आपको उसमें दिखेगा लिंगवन टॉन्सिल बिल्कुल साइड में है, और जब ये फूल जाते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हम कहते हैं टॉन्सिल हो गया है। लिम्फोइड टिश्यू जो एम्बेडेड है इसमें, इसको हम कहेंगे लिंगवल टॉन्सिल। ये रहा, है ना। ये एपिग्लॉटिस जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कार्टिलेज में ओपन होगा और बंद होगा। फिर इधर है पैलेट फेरेंजियल आर्च, इस तरीके का। ये पैलेटाइन टॉन्सिल, ओके, ये और ये पैलेटाइन टॉन्सिल। लिंगवल टॉन्सिल यहाँ साइड में पीछे टंग के बिल्कुल पीछे की साइड पे लिंगवल टॉन्सिल्स हैं। ये पैलेटल ग्लॉसल आर्च है। फिर ये टर्मिनल सैक्युलस है, और ये रहा आपका फॉलिएट पेपिलाई। फिर सरकम वैलेट पेपिलाई। सरकम वैलेट पेपिलाई, ये जो आप जीप को जो आप देखोगे तो आपको ऐसे अरेंज हुए दिखेंगे, क्लियर कट ये आपको दिखेंगे, है ना, सरकम वैलेट पेपिलाई। फिर डॉर्सम ऑफ अ टंग, फुजीफॉर्म पेपिलाई इधर आगे की साइड पे होगा, और बिल्कुल आगे बहुत छोटे छोटे महीन महीन से जो दिखते हैं वो फिलीफॉर्म पेपिलाई सबसे आगे होगा। सबसे आगे फिलीफॉर्म पेपिलाई, फिर उसके पीछे फुजीफॉर्म जो थोड़े से बड़े होंगे, और बिल्कुल पीछे की साइड पे जो है वो आपको ये वाला दिखेगा फॉलिएट पेपिलाई, है ना। ये देखो, ये टंग, और ये इसके जो टेस्ट हैं वो टेस्ट कौन सबसे आगे जो है फिलेट पेपिलाई की साइड पे स्वीट, फिर थोड़ा सा पीछे की साइड पे देखो तो फिलेट पेपिलाई में ही स्वीट के बाद में सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद में सॉर, स्वीट सॉर फिर सॉर, और सबसे लास्ट में फुजीफॉर्म वाले साइड पे पेपिलाई के साइड पे आपको बिटर टेस्ट आएगा, है ना। तो ये इसके लोकेशंस हैं। यू कैन सी ओवर हियर टेस्ट बर्ड्स, लिंगवल टॉन्सिल। ये जो है ये डायग्राम दिया गया किस तरीके से सीक्रीशंस होते, कैसे इसमें ये जो है ना, ये इसमें क्या होगा कि हम खाना खाते तो यहाँ से फूड के मैसेज टेस्ट जाता है, और यहाँ से नर्व से आपको क्रेनियल नर्व से आपको मैसेज ब्रेन को मिलता है कि किस टाइप का इसमें टेस्ट मौजूद है। ओके, इतना डिटेल में नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ, अदरवाइज इट गोज़ इन डिटेल इन 9th CBSE एक बुक में है बहुत डिटेल में। पैराटाइड ग्लैंड देखो अब कहाँ पे है। पैराटाइड ग्लैंड इस तरफ होगा, डक्ट के थ्रू ये डक्ट, ये सलाइवरी ग्लैंड है, पैराटाइड सलाइवरी ग्लैंड, ये डक्ट के थ्रू यहाँ मुंह में आएगा सलाइवा। सब लिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे है, और एक और है सब मैंडिबलरी ग्लैंड। सब मैंडिबलरी ग्लैंड यहाँ पे मैंडिबल्स के इधर साइड पे है, तो ये भी डक्ट के थ्रू मुंह में भेजेगा, है ना। थैंक यू।